परम श्रद्धेय आनंद श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन। श्रवण संघीय प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श मुनि महाराज साहब और समस्त संघ के चरणों में वंदन। जो सती वृंद यहाँ पर विराजमान है उनको, उनके चरणों में कोटिशय वंदन। जितने भी दान दातार सज्जन यहाँ पर विराजमान है, जैसे भी धारीवाल जी ने कहा कि सबका नाम लेंगे, किसी का छूट गया तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए सभी को मेरा नमन है। और जो सब आप लोग यहाँ पर धर्मावलंबी बंधु पधारे हैं उन सब का अभिनंदन। रेस्पेक्टेड संतोष जी बोत्रा, निखिलेश जी लोढ़ा और जितने भी ट्रस्टी हैं यहाँ पर, उन सबका, और विशेष रूप से सुनील जी मारू, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ऑफ दिस जैन सोशल फेडरेशन अहमदनगर, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, it is a pleasant moment for me to see you today in this very fruitful occasion when we are going to inaugurate a foundation stone for this university. I am thankful to all the trustees, especially all the trustees, organizers of Jain Social Federation Ahmednagar, who is especially managing Adarsh Rishi Ji Hospital and Medical Research Center for last 23 years. And I have also visited, perused the hospital yesterday with all the team of our doctors. Best hospital with excellent traditionals, and considering the future, Jain Social Federation Ahmednagar has decided to start an educational hub university in the name of Vardhaman Mahavir, because Tirthankar Mahavir is already there. So this is Vardhaman. What is mean by Vardhaman? आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तो आनंद श्री जी महाराज साहब के जो, अब मेरे पास वो वर्ड नहीं है कहने के लिए कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले वाहक आदर्श ऋषि जी महाराज साहब का जो सपना है, वो सपना आप लोग सब पूरा करें। बंधुओं, ये जो धन आप लोगों ने अर्जित किया है, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़कर जाएं या देकर जाएं। लेकर जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। और यदि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर सुपुत्र है, आपने महाराज श्री के सिद्धांतों का पालन किया है, इनके विचारों को अंगीकार किया है, जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि जैन धर्म केवल धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। और यह कला यदि आपने सीखी है तो फिर मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब आप विदेश में जाते हैं तो क्या आपका ये करेंसी चलती है? रुपया चलता है? नहीं, आपको बदलवाना पड़ता है। अगर अमेरिका जाएंगे तो डॉलर में बदलवाना पड़ेगा, और कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी में बदलवाना पड़ेगा। इसलिए जातस्य ही मृत्यु ध्रुव, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इसलिए यदि हमने ईश्वर की कृपा से धन अर्जित किया है तो उसे सही कार्य में हम लगाते रहें, दिन दूनी रात चौगनी आपके धन में वृद्धि होगी। ईश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर रहेगी। तो इट्स ए great pleasure and pride for all of us, this
that Jain Social Federation is thinking about the opening of this educational hub university, and today Bhumi Pujan of Vardhaman Mahavir Education Hub in this area. This federation is thinking for the students' care and quality education and wants to improve ideal ambience for intellectual growth and physical development, committed to excellence, innovation, educate its students to be responsible, productive and creative citizens of the world with their skills to think globally, reason critically and communicate effectively. Dear brothers and sisters, at this Bhumi Pujan of Vardhaman Mahavir Education Hub, Ahmednagar, I suggest that please provide unparalleled academic and career enhancement programs, and also commitment should be towards holistic all-round personality development and to create strategic presence with a global mindset to the students of this educational institution. Because education is a key to develop humanity. Education is a key to develop humanity. I pray Supreme Lord Chobis Tirthankar to give courage to achieve goal which is in the heart and mind of founder of the Jain Social Foundation Nagar, who wants to start Vardhaman Mahavir Education Hub in famous town of Maharashtra, Nagar. As all of you know that Article 30 subclause 1 of the Constitution of India gives linguistic and religious minorities a fundamental right to establish and administer educational institutions of your choice. These rights are protected by prohibition against their violation. National Commission for Minority Educational Institution Act 2004 has been enacted to safeguard the educational rights of minorities enshrined in Article 30, subclause 1 of the Constitution. Unfortunately, 5 minority communities has been declared by the central government of India earlier, but at the last, on 27 January 2014, Jains were also declared as minority community in our country. It is also well settled principle of law that the policy of reservation in admission cannot be made applicable, and also policy of employment is also not applicable in the minority educational institutions, and exempted from right to free and compulsory education act 2009 also. So this is a great right given by the Constitution of India to minority communities, and many communities have started and open educational institutions. See the position, madrasa. They are giving only religious education in madrasas. They are teaching only Urdu and Quran. We have right, no doubt. Constitution of India has given us right to open minority educational institution, and we have right, constitutional right, to give education of our religion also. So religion जो आप माइनॉरिटी का यहाँ पर खोलने जा रहे हैं, पहली बात तो सबसे पहले कि माइनॉरिटी का स्टेटस लीजिए. अगर माइनॉरिटी का स्टेटस आपने लिया है तो कई प्रकार के बेनिफिट्स हैं जिनका अभी यहाँ पर बखान करना भी न तो समय है न उचित रहेगा, परंतु माइनॉरिटी स्टेटस के लिए आप 2 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं. माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट भी ग्रांट करता है, माइनॉरिटी स्टेटस सेंट्रल भी ग्रांट करता है, पर क्योंकि जैन कम्युनिटी को एज ए होल सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप हमारे कमीशन से भी माइनॉरिटी स्टेटस ले सकते हैं. पर अब नया एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, और वो सिस्टर्स क्लूनी वर्सेस वेस्ट बंगाल की जजमेंट पे उन्होंने कहा कि स्टेट से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना होगा, क्योंकि कई प्रकार की फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, एडवांटेज स्टेट गवर्नमेंट भी देती है. अभी मैं राजस्थान गया था. राजस्थान में राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि जिस मदरसे के पास में, जिस वक्फ बोर्ड के पास में, या जिस मस्जिद के पास में खुद का पट्टा है या कोई सेल डीड है रजिस्टर्ड, तो उसको 25 लाख रुपया गवर्नमेंट मदरसा बनाने के लिए दे रही है. तो आप लोग भी जैन समाज के लिए ये मांग कर सकते हैं कि जैन समाज के लिए भी कुछ राशि गवर्नमेंट रखे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए दे. तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज नॉट एप्लीकेबल, एडेड और अनएडेड बोथ.
As per the decision of Honorable Supreme Court of India, Pramati versus Union of India, to protect and promote minority rights, and you can appoint principal or headmaster as per your choice without going in merits of the case. Anybody cannot say that I am senior person. No, minority education institution has right, minority community has right to appoint principal and headmaster of their choice. Administration is in your hand. You can recruit the teachers in your community. We should also know the education policy 2020. We are late, no doubt, but this policy is central policy. Recently introduced by the central government, the outcome of national policy 2020 are that universitization from early schoolhood, childhood education to secondary education by 2030. Aligning with sustainable goal SDG 4, 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level by 2030. We have in our country, Kerala state, 100% literacy is there. Not in any state of India. A concerted national effort will be made to ensure universal access and afford opportunity to all children of our country to obtain quality holistic education, including vocational education from preschool to grade 12. Bring back 2 crore dropout students, children, teaching to be prepared for assessment reform by 2030. जैसे होटलों को स्टार दिए जाते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, अब स्कूल्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को भी एक्रेडिटेशन दिया जाएगा, ग्रेड दी जाएगी. आज क्या हो रहा है, कोई भी वार्ड को अपने किसी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराने जाता है, क्या कहते हैं वो लोग, सब आपको शॉक्स मिलेंगे, शूज मिलेंगे, नेकर मिलेगी, पैंट मिलेगी, बेल्ट मिलेगी, आपको टोपी भी मिलेगी, शर्ट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. सब एजुकेशन, आप ट्यूशन ले लीजिए, आप कोचिंग करा लीजिए. नो सर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हुए, ये तो दुकानदारी हो गई. मुझे कहते हुए फक्र है कि जैन समाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने में पीछे अब नहीं है. हार सार. और मैं तो, मेरे पास वो वर्ड नहीं है आज महाराज साहब आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कि आप इस जैन समाज के ऊपर, न केवल जैन समाज के ऊपर बल्कि संपूर्ण मानव समाज के ऊपर कृपा कर रहे हैं. और जिन लोगों ने दान की घोषणा की है, करोड़ों के दान की घोषणा तो हुई, परंतु मैं कहता हूं कि जो आदमी 1000 रुपए देने की भी ऐसे रखता है, हम उसका भी 1000 रुपए सिर माथे पे रखेंगे. ये हमारी घोषणा होना चाहिए. क्योंकि किसी के पास में 10 करोड़ है और उसने 1 करोड़ दे दिया, और किसी के पास में 100 रुपए है और उसने 25 रुपए दे दिए, मैं तो किसका ज्यादा होगा. उसने अपने सारा जीवन का अर्जित किया हुआ पैसा 1/4 दान कर दिया. किस लिए? आप लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए. तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखिए खोलना बड़ा आसान है, रन करना बड़ा मुश्किल है. हमारे यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज यहाँ पर बैठी है. कल्याण जी गंगवाल साहब अक्सर मिला करते हैं और बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं. हमारा सौभाग्य है यहाँ पर मौजूद हैं. आप सब लोग एक एक मूर्ति, धारीवाल जहाँ हम जाते हैं धारीवाल जी का नाम सुनते हैं, हम पालीताना जाते हैं, शत्रुंजय जाते हैं, कहीं भी चले जाओ नाम आता है. तो ये हमारे एक समाज के गौरव हैं और ऐसे कई गौरव हैं. मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में गया हूँ, अकेले सुरेश जी जैन इतनी अच्छी तरह से उसको चलाते हैं. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा. कोविड काल में कोई मंदिर खुला हुआ नहीं था, कोई मस्जिद खुली हुई नहीं थी, कोई गिरजाघर खुला हुआ नहीं था, कोई भी धार्मिक स्थल खुला हुआ नहीं था. अगर खुला हुआ था तो हॉस्पिटल. और हमारे अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी, कोविड हो गया निर्मल कुमार जी सेठी को, दिल्ली के अंदर हम उन्हें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिला पाए, हम उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला पाए.
अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के, जैन समाज के, और उनको हम लाख कोशिश करने के बावजूद, वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे पॉलिटिकल रखते हैं संपर्क अपने, और किसी प्रकार की कमी, सैनिक में उनका आलीशान बंगला है, परंतु हम उनको बेड नहीं दिला पाए, हम उनको ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, और वो मरणासन्न हालत में जब 3 दिन अपने घर पर रहे, तब सुरेश जी ने, जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जब इस हालत में हैं तो मेरे पास मुरादाबाद आ जाओ, जितना अच्छा आपका इलाज हो सकता है मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। उनको वहां पर मजबूरी में दिल्ली छोड़ के और मुरादाबाद जाना पड़ा, और वो वहां तीर्थंकर महावीर में भर्ती हुए, परंतु फिर भी बच नहीं पाए, और पॉलीथीन में लपेट करके कहा कि इनका अंतिम संस्कार हम कर देंगे। बच्चों ने बहुत उनसे मिन्नतें की कि साहब अंतिम संस्कार तो हमारे पिताजी का हमें कर लेने दीजिए। मना कर दिया गवर्नमेंट ने, मुरादाबाद के प्रशासन ने साफ मना कर दिया। जब उन्होंने बहुत जोर लगाया, दिल्ली तक उन्होंने प्रयास किया, तो उन्हें पॉलीथीन में लपेट कर ये कह के एम्बुलेंस में रखवा देते हैं, आप सीधे कहीं भी इसको ले जाओ और अपना संस्कार अपनी धार्मिक रीति रिवाज से कर देना, पर इस पॉलीथीन को खोलना मत। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बहुत मानवता की सेवा है। महाराज साहब, मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आनंद श्री महाराज साहब के लिए भी, आप आदर्श श्री महाराज साहब के लिए भी, आपके जितने भी अनुयायी है जिनके लिए भी, जितने भी आपके दान दाता है उनके लिए भी, जिस बच्चे ने अपना सहयोग किया है, मैं हृदय से उसका धन्यवाद करता हूं, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए कहने के लिए। और जिन्होंने भी यहाँ पर भी दान दिया है, मेरा ये मानना है ईश्वर जिन्होंने यहाँ पर दिया है उनको कई गुना, 1000 गुना पैसा और देगा, और देगा तब छप्पर फाड़ करके देगा, पता ही नहीं चलेगा। तो एंश्योर द इंक्लूसिव एंड equitable quality education system by 2030. This is the aim of central government. Now they want to prepare us for new education policy, because we are going some wrong direction. अब देखिए, धार्मिक शिक्षा के लिए हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट का दिया है, परंतु इनका हमने गलत मतलब निकाल लिया। हम अपने धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आप 1 पीरियड रख लें, 2 पीरियड रख लें, अपनी जिनवानी पढ़ाएं, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएं, अपने जैन धर्म को पढ़ाएं, पर जैन धर्म ही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। न साइंस पढ़ाएंगे, न कॉमर्स पढ़ाएंगे, न हम उनको स्पेस साइंस पढ़ाएंगे, न बायोलॉजी पढ़ाएंगे, न मैथ्स पढ़ाएंगे, न पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, न सोशल स्टडी पढ़ाएंगे, कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाएंगे, और केवल उर्दू और कुरान पढ़ाएंगे, तो भाई फिर वो पंचर ही सुधारेगा। To bring in mainstream of the country of our students, our community students, this is the aim behind the Article 30 subclause 1 of the Constitution. So every child will come out of school, adopt at least one skill and common standard of learning in public and private school. Multiple entry exist system. There may be a 2 years program with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year bachelor program. For students completing 4 years bachelor program with research, there could be a 1-year master's program, and there may be an integrated 5 years bachelor and master's program. Undertaking a PhD shall continue either a master degree or a 4-year bachelor degree for research. And now MPhil is discontinued. अब कोई MPhil की डिग्री किसी को नहीं दी जाएगी, केवल PhD. Every institution should make all necessary efforts for implementation of this NEP 2020. This duty cast on every citizen of India to implement this education policy 2020. क्योंकि केवल कोई लॉ बनाने से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसको जब तक हम नहीं चाहेंगे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। Ensure quality, accessibility, inclusivity and equity. Learning should be holistic, integrated, enjoyable. यानी खेल खेल में बच्चों को सिखाइए। ये नहीं कि एक लेक्चरर साहब आए, प्रोफेसर साहब आए, अपना एक 40 मिनट का लेक्चर दिया, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, उन्होंने तो क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, 40 मिनट का एक लेक्चर दिया और निकल गए। Now in education policy 2020, the learning should be holistic, integrated, enjoyable,
engaging promotion of Indian languages and art and culture. अब कोई भी IAS, IPS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अपनी इंडियन लैंग्वेजेज में कर सकता है, हिंदी में कर सकता है, संस्कृत में कर सकता है। जमाना लग गया जब अंग्रेजी के लोग ही IPS, IAS बना करते थे। अब अपनी लोकल लैंग्वेज में जाएंगे। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से भी कह दिया गया है कि इसे स्टेप कर दीजिए, ये नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाले ही जाएंगे, नहीं, हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, लोकल लैंग्वेज के लोग भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे। ये हम देखेंगे जल्दी ही, अगर सपना साकार हुआ इस गवर्नमेंट का तो। Children not only learn but more importantly learn how to learn. These elements must be incorporated, taking into account the global needs of the country and with a respect for the difference to its rich diversity and culture. हमारा कल्चर हिंदुस्तान का किसी प्रकार से कम नहीं है। ये वो देश है जहाँ जैन धर्म पैदा हुआ है, जहाँ बौद्ध धर्म पैदा हुआ है, जहाँ सिख धर्म पैदा हुआ है, जहाँ सनातन धर्म पैदा हुआ है, जहाँ हिंदू धर्म पैदा हुआ है, उनमें से एक जैन धर्म। तो इंस्टॉलिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट्स वेराइड सोशल, कल्चरल, टेक्निकल नीड्स, इट्स artistic language and knowledge traditions and strong ethics in India's young people is considered critical and crucial for purposes of national pride, self-confidence, self-knowledge, cooperation and integration sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge center superpower. These are the main ingredients of National Education Policy 2020. India is a country of magnificent diversities. We are an ancient civilization and a birthplace many leading religions, just I have said. Value of education: education for life, life for love, love for man, man for service, सर्विस फॉर स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे यहाँ पर विराजमान है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी फॉर सोसाइटी, सोसाइटी फॉर नेशन, नेशन फॉर वर्ल्ड एंड वर्ल्ड फॉर पीस, एंड पीस इज मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर जैनिज्म. सो वी शुड प्राउड दैट वी आर Jain. Why? We can say many things, but I am saying only non-violence. रसिया यूक्रेन साल भर हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे यूक्रेन को। हमारे यहाँ से हजारों छात्र, मैं कहूँगा लाखों छात्र केवल मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। बामुश्किल हवाई जहाज का इंतजाम करके वहां से निकाल करके लाए कि साहब 3 दिन के लिए फीस दे दो, स्पेस दे दो, हम अपने बच्चों को इंडिया ले जाएं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी खोल रहे हैं पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, मैं तो कहूँगा मेडिकल कॉलेज की भी आप पहले दिमाग में तो रखें। और जब जैसे लोग बैठे हैं हॉस्पिटल चला रहे हैं। 2 मिनट जैन साहब, आपका अगर सहयोग रहा ना तो वो भी काम हो जाएगा। आचार्य श्री, मेरा सहयोग नहीं है, मेरे को तो आशीर्वाद है। अब ये कहाँ से आशीर्वाद मिला? आज मेरे आने का कतई पता नहीं था, परंतु अचानक, क्योंकि मुझे उस पार्लियामेंट के सेशन में वहाँ कुर्सियाँ लगती है और कुर्सी पे नेम लिखा जाता है। मैंने ये इंतजाम किया कि भाई कुर्सी पे खाली न रहे, किसी की नजर नहीं पड़े, हमारे कोई जाकर के वहाँ बैठ जाए। तो पार्लियामेंट का आज उद्घाटन होने वाला है, परंतु ये गॉड का ही मेहरबानी समझो कि हमारे मालू जी का फोन मुझे सबसे पहले आया। मालू जी ने कहा कि इस तरह से हम यूनिवर्सिटी की स्थापना करें, एजुकेशन हब, और महाराज साहब का नाम लिया, आनंद ऋषि साहब का नाम लिया, आपका आदर्श ऋषि साहब का नाम लिया। तो जाने कहाँ से मुझे गॉड गिफ्ट एक मिली कि नहीं आपको तो जाना है। तो मैं अपने आप नहीं आया, कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है। आपका ये सपना साकार होता हुआ देखना चाहता है ईश्वर भी, आनंद ऋषि महाराज साहब भी, इसलिए मैं आज यहाँ आपके बीच में हूँ। तो ये मेरा परम सौभाग्य है। तो नॉन वायलेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कहीं आपको सब धर्म बहुत अच्छे हैं, किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो ये जैन धर्म है। प्रमोटिंग पीस एंड ब्रदरहुड,
लीव एंड लेट लीव, यानी एक एक शब्द पे यदि बोला जाए तो समय ही नहीं है हमारे पास, ये सुबह से शाम हो जाएगी, मैं उसमें लंबा नहीं जाऊंगा। सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद, मैनी साइडनेस, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं, दिस इज अनेकांतवाद। अपरिग्रह, 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 जो चल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उड़ीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम। वरना ये आपकी जो नाव है ये कब डूब जाएगी ये सब इसका अपने पता नहीं है। अपने सब सयाने ही है ना सारे। बिल्कुल सही है। तो एंड व्हाट द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड एट प्रेजेंट डिप्टी सीएम महाराष्ट्र सेज 25% इस कंट्री की जीडीपी में जैन सोसाइटी का हाथ है। कितनी बड़ी बात है, हमें भी पता नहीं है कि हमारा कितना हाथ जीडीपी में है, परंतु आप ही के महाराष्ट्र के एक जो सर्वोच्च स्थान पर रहे उन्होंने कहा है कि जैन समाज का जीडीपी में 25% हिस्सा है, आदिनाथ से लेके महावीर तक। मैं तो कहूंगा इस देश का नाम ही भारत, भारत से पड़ा है, इससे बड़ा गौरव और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो वी शुड फील प्राउड दैट वी आर जैन। Many, I want to say one more thing to all of you. Always feel happy. You know why? Because don't expect anything from anyone. Expectations always hurt. चोट पहुंचाती है, जब आप किसी से अपेक्षा करते हैं चोट पहुंचाती है। No, life is short. So love your life, and if married, your wife also. My better is also sitting here. Be happy, keep smiling always. Just love for yourself and be satisfied. प्राप्त को पर्याप्त समझें। कोई अपने से ये अपेक्षा करे कि ये तो इतना बड़ा हो गया, मैं तो इतना छोटा, अरे पीछे की सोच, ये कहाँ रह गया, मैं कहाँ पहुंच गया। सेटिस्फाई होंगे तो लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलेगी। आगे वाले को देखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ, बिफोर यू स्पीक लिसन। बोलने से पहले दूसरे को सुन तो लो। बिफोर यू राइट थिंक, लिखने से पहले सोच लो। बिफोर यू स्पेंड अर्न, खर्च करने से पहले कमा लो। बिफोर यू प्रे फॉरगिव, बिफोर यू हर्ट फील, पहले खुद फील करो कि मैं इसको चोट पहुंचा रहा हूँ, क्या इसके साथ। बिफोर यू हेट लव, before you quit try, and before you die live। क्योंकि मृत्यु का सारा सामान तैयार है, एक दुकान सजा के तैयार है, आपके नाप का कफन उसके पास मौजूद है, बांस मौजूद है, सण मूछ सब मौजूद है, और अड़ोसी पड़ोसी भी तैयार हैं। और साहब क्या थे, चल बसे। और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर और आचार्य श्री ऐसा कृपा मेरे ऊपर कर दें कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया, और अगर रोना नहीं आया तो मुझे थपका करके रुलाया गया, और जब हंसा। मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं तो हंसूं और जग रोए। अगर ये आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई वांट टू से और सोसाइटी, समाज के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। समाज में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, और अधिक नहीं कहूँगा, बस आप लोग सब समझदार हैं। समाज में नियम नहीं होते, समाज में व्यवस्था होती है, समाज में कोई सूचना नहीं होती। कई बार कहते हैं साहब मुझे तो इतला ही नहीं की, इसलिए मैं तो समाज में आया ही नहीं। अरे सबको पता है कि आज ये फंक्शन है, मेरा फर्ज बनता है कि किसी ने नहीं बुलाया तब भी मैं जैन हूँ, अड़ोस का हूँ, पड़ोस का हूँ, नगर का हूँ, पुणे का हूँ, या किसी का भी हूँ, कि मेरा फर्ज बनता है कि आचार्य श्री इतना बड़ा एक काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आप यहाँ पर बैठे हैं,
अपने बहुत हार्ड अर्न मनी आप इस काम के लिए दे रहे हैं। आप, मैं तो महाराज श्री जब विराजमान थे भी कह सकता हूँ कि आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। और जो यहाँ पर दानदाता लेने वाले भी हैं, लेने वालों की जिम्मेदारी देने वालों से ज्यादा बनती है कि जो अपना हार्ड मनी आपको दे रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखना है, एक एक पैसे को बहुत हिफायत से खर्च करना है। जैन साहब हॉस्पिटल में 23 साल हो गए, 23 साल हो गए हॉस्पिटल को। बहुत अच्छी इन लोगों ने इसी तरह से तन मन धन से, जो लोग भी कार्य करता है ना, उन लोगों ने उसी तरह से, और हमारा पूरा वाच रहता है एक पैसे का भी दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। समाज से जो पैसा ला रहा है उसका बराबर उपयोग होना चाहिए। महाराज श्री आज जो ये पैसे की घोषणा हो रही है इसी कारण हो रही है। बराबर है। हार शार, हार शार। ये जो महानुभाव आपके देख रहे हैं, 5 करोड़ मेरी तरफ से, 2 करोड़ मेरी तरफ से, 10 करोड़ मेरी तरफ से, ये ऐसे ही नहीं देते। आप इनके यहाँ जाके देख लो, आप 100 रुपए तो ले आओ चंदे के, तो ये कुछ देख करके देते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हाँ, ये पहले तराजू में तोलते हैं, उसके बाद में सतोलते हैं। ऐसे ही जैन समाज बुद्धिमान थोड़ी माना जाता है, जैन समाज को बुद्धिमान माना जाता है। तो सूचना नहीं बल्कि अनुशासन होता है। सूचना नहीं बल्कि समझ, कानून नहीं होता बल्कि अनुशासन होता है। भय नहीं होता है, भरोसा होता है। शोषण नहीं होता है, पोषण होता है। आग्रह नहीं होता है, आदर होता है। संपर्क नहीं होता है, संबंध होता है। और अर्पण नहीं होता है, समर्पण होता है। तो जिन्होंने भी दिया है ये सबका समर्पण है। हमेशा समाज में मैं नहीं होता, जिस समाज में मैं होता है वो समाज टूट जाता है। इसलिए समाज में मैं नहीं होता बल्कि हम होता है। और अगर व्यक्ति में गुण है, गुण नहीं है और रूप है, तो ऐसा रूप बेकार है। आपने देखा है कभी मिस इंडिया किसको मिलता है? रूप के साथ साथ जिसमें और भी गुण होते हैं उसको अवार्ड मिलता है। तो गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है। इसलिए जिन्होंने भी घोषणा की है उन्होंने अपने कंचन का सदुपयोग किया, क्योंकि सकला गुणा कांचन मानश्रेयंती, सारे गुण धन में मौजूद हैं। यदि इसका उपयोग सही नहीं किया, आप देखिए मीरा ने जहर का भी उपयोग किया और वो गले में रह गई। उसने जहर को भी गले में रख लिया और कितनी बड़ी गायक बनी, कितनी कृष्ण भगवान की। और राहु और केतु ने घमंड किया तो आज भी चांद पे दाग है। इसलिए गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। आप कितना अच्छा पढ़ो तो भूख ही नहीं है तो क्या खाएगा वो आदमी? तो भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। विद्या ददाति विनियम, विनियम च पात्रता। साहस अगर नहीं है तो हथियार किस काम का? आपने पिस्टल पकड़ा दी और पिस्टल चलाते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं। आपने नाइफ तो दे दिया डॉक्टर साहब के हाथ में, पर डॉक्टर साहब उस चाकू को देख करके घबरा रहे हैं और वो ऑपरेशन ही करने के काबिल नहीं, और हाथ चाकू नीचे छूट गया तो फिर काय के डॉक्टर ने? इसलिए साहस अगर है तो हथियार काम का है, होश अगर नहीं है तो जोश किस काम का? इसलिए हमारा जो होश है वो ये हमारे बुजुर्ग हैं, और जोश है ये हमारे जो यहाँ पर युवा जो बैठे हैं। इसलिए इनका सहयोग लेकर के और आपको होश के साथ जोश से काम करना है। ये आचार्य श्री का। तो परोपकार अगर नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, तो सब कुछ बेकार है। इसलिए सूर्य की किरण से प्रकाश होता है, माता पिता के सम्मान से भव सागर पार होता है, और संतों की वाणी से ही हमारा सबका उद्धार होता है, और प्रेम की भाषा से परिवार में परिवार फलता और फूलता है। देखिए, संबंध जोड़ना एक कला है, परंतु उसे निभाना एक साधना है। और समाज से रिश्ते की कद्र भी हमें धर्म से भी ज्यादा करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैन धर्म के सिद्धांतों से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, और जीवन में एक मित्र जरूर होना चाहिए। सगे संबंधी बहुत हैं, पर एक सच्चा मित्र, हालांकि बहुत मुश्किल है सच्चा मित्र तलाश करना भी, पर करेंगे तो मिलेगा। एक सच्चा मित्र होना चाहिए
एक शायर ने कहा है कि दोस्तों के साथ रहिए जनाब, ये वो हकीम है जो अल्फाजों से इलाज कर दिया करते हैं, यानी शब्दों से, वाणी से, अपनी बोली से। दोस्तों के साथ रहिए जनाब, ये वो हकीम है जो अल्फाजों से इलाज कर दिया करते हैं। रिश्ते हैसियत पूछते हैं, बच्चे वसीयत पूछते हैं, कमबख्त ये दोस्ती हैं जो केवल आपकी खैरियत पूछते हैं। आपने देखा है कोविड काल में जो पड़ोसी था, मित्र था, उसी ने साथ दिया, वरना रिबिन लाके लगा दिया कि ये तो इन्फेक्टेड है, यहाँ तो कोई अंदर भी मत जाना, और थाली भी किसी ने सरका दी, मित्र ने तो बहुत अच्छा है, वरना भूखे सो गए। तो कब कौन सी विपत्ति हमारे ऊपर आएगी, मानवता पे आएगी। और एक विद्वान से पूछा कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा, तो बहुत उसने गहन विचार किया कि तृतीय विश्व युद्ध कब होगा ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु चतुर्थ विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तृतीय अगर होगा तो मानवता ही नष्ट हो जाएगी। अब तलवार भाले से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब कौन सी लड़ाई होगी आप जानते हैं। अंत में मैं कहूंगा कि हम इंसान हैं, और एक इंसान समुद्र के पास गया और समुद्र से कहा कि समुद्र तेरा पानी खारा न होता तो कितना अच्छा होता, सब लोगों को शुद्ध पानी मिलता, पर हमें बोतल के पानी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत कम पानी है धरती पर जो पीने योग्य है। तो समुद्र के पास जाकर के कहा कि तू खारा न होता तो कितना अच्छा। वो एक गुलाब के पेड़ के पास गया, एक गुलाब तेरे में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता, बहुत खुशबू आती। और एक कोयल के पास गया कि तू काली न होती तो कितनी अच्छी। तो ये तीनों मिलके इंसान के पास गई और इंसान से कहा कि ए इंसान, अगर तुझमें ये कमियां देखने का हुक्म न होता तो तू कितना अच्छा होता। It's a pleasant moment to see you today, all of you in this function. I warmly and heartily welcome each one of you. This function of Bhumi Puja of Vardhaman Mahavir Education Hub and University must have evoked many memories of the bygone days in our minds. The time passes, those moments become most cherished. और आचार्य महाराज साहब, मुझे खुशी बहुत है दिल में कि आज मैं इस फंक्शन में शामिल हुआ। आपके जीवन में पहली बार दर्शन हुए, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव कम इन नगर, नेवर कम बिफोर टुडे। अब बार बार आना होगा आपको। तो उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे पास शब्द नहीं है जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा, और ईश्वर ने अगर चाहा और हम रहेंगे, कोई दोहराए नहीं है। अभी तो 72 ईयर्स हुए हैं, तो अभी कितने 28 साल तो बाकी हैं। बाकी आपका अगर होगी मेहरबानी तो और भी आगे बढ़ सकता है। वो जज रहे हुए हैं बाबा, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। So as time passes, these moments become most cherished. I do not have words to express my feelings and how to thank you, all of you. Good wishes, affections, especially to all the trustees, coordinator, Jain Social Federation, Nagar. I have much pleasure in associating myself with this Bhumi Puja Vardhaman Mahavir Education Hub. It is indeed commendable that the Jain Society Federation has been carrying out many philanthropic and humanitarian services regardless of caste, creed, nation, etc., and has witnessed their acts of kindness in serving the people wholeheartedly. Heart is not a basket for keeping tension, sadness. Heart, ये हमारे हार्ट के सर्जन यहाँ पर मौजूद हैं, और आपके आचार्य श्री हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हुए हैं, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल हार्ट का है। पर डे कितने ऑपरेशन हो रहे हैं ये कह नहीं सकते। तो हार्ट is not a basket for keeping tension and sadness. It is a golden box for keeping of traces of happiness and sweet memories. I had always remembered it will not be out of place here to remind ourselves that what is contained by Warren Buffett. I look three things in bearing people. First is personal integrity.
second is intelligence, third is high energy level. First integrity, second intelligence, and third high energy level. हर मनुष्य में होती है. But if you don't have the first, other two will kill you. अगर आपके पास में इंटेलिजेंस है, हाई एनर्जी लेवल है और पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं है, तो ये दोनों आपको जो बात की है ये किल कर देगी, मार देगी आपको. इसलिए केवल मात्र आपको अपना इंटीग्रिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रखना है. द बेस्ट क्योर ऑफ माइंड इज क्वाइट माइंड एंड बेस्ट क्योर ऑफ माइंड इज नेवर माइंड. तो मैंने कुछ कह भी दिया हो, किसी को फील भी हुआ हो, तो जैसा मैंने कहा कि बेस्ट क्योर ऑफ बॉडी इज माइंड, बट द बेस्ट क्योर ऑफ माइंड इज नेवर माइंड. तो नेवर माइंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में माता श्री और मातृशक्ति विराजमान है. उनके लिए अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा तो ये माना जाएगा कि मैंने आधी आबादी को तो छोड़ ही दिया. इसलिए आधी आबादी के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं. बेटा अंश है तो बेटियां वंश है. बेटियां दो घर चलाती हैं. 25 वर्ष तक एक घर में रहती है और 25 वर्ष के लगभग बाद में दूसरे घर में जाती है. तो एक तरह से एक महिला के दो जन्म होते हैं, एक पीहर का, एक ससुराल का. अगर पीहर से जाकर ससुराल में अगर वो साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में एडजस्ट हो गई, तो फिर उसका जिंदगी भर उसके पीहर वाले कहते हैं कि बेटा आजा. कि नहीं, मेरे ससुराल में तो ये काम है, ये काम है, मेरी तो देवरानी है, मेरी तो जेठानी है, मेरी तो सास है, मेरा तो ससुर है, मैं कैसे आ सकती हूँ. इसलिए क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ. हर जैन समाज के चौथी लड़की कहीं पंजाबियों में आपको मिलेगी शादी. और शादी ब्याह आप आपस में सगे संबंधों के द्वारा नहीं हो रही, अब इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं. लोगों ने दुकानें खोल ली, आओ हम आपका जोड़ा मिलाएंगे. अरे जोड़ी तो ऊपर वाला मिलाता है, हम तो सेलिब्रेट करते हैं केवल. इसलिए हमने वो जो हमारे पुराने संबंध थे, जो आचार्य श्री ने कह दिया पत्थर की लकीर थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. हम न्यू मॉडर्न सोसाइटी में हैं. वो सोसाइटी हमें कहाँ ले जाएगी कुछ कह नहीं सकते आप सब लोग. तो जिंदगी की जो 4 धाम यात्रा है वो माँ की गोद में, बहन की राखी में, बेटी की हंसी में और पत्नी के प्रेम में है. तो ये वो मात्र शक्ति है जो हमें साहस देती है. और कहते हैं कि किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है. और मेरे पीछे तो मेरी पत्नी का ही हाथ है, क्योंकि ये खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है. और अगर यही खुश नहीं है तो दुनिया खुश हो, फिर मेरा घर बार ही खुश नहीं है तो मैं क्या खुश रहूँगा. इसलिए लव योर लाइफ एंड इफ मैरिड, लव योर वाइफ, एंड इफ वाइफ हैज हिज हस्बैंड देन लव योर हस्बैंड आल्सो. थैंक यू वेरी मच. और आप लोगों ने मुझे जो समय दिया और ध्यानपूर्वक मुझे सुना, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे ट्रस्ट का, पूरे यहाँ पर जो भी जैन समाज यहाँ पर आया हुआ है. जय जिनेन, बहुत बहुत धन्यवाद. जैन साहब इधर आइए. हम आपसे एक ही है ना, मतलब है ना, सहयोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट से आप बराबर जुड़े रहें, आपका मार्गदर्शन भी रहे और सभी तरह से उनको सहयोग मिले. बस यही हमारी अपेक्षा है. सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन को करने वाले ऊपर बैठे. हाँ जी, हाँ जी. व्यावहारिक मार्गदर्शन देने वाले जो होते हैं. हाँ, देखिए.